Hello dear students. So if you are in class 10 and if you want to join these lectures, they are free. They held on every weekend, Saturday and Sunday. So you can join. You have to fill the link Google form. It's given in the description. So if you just fill that form, we will add you to a group where you will get all the information regarding these lectures. So you can join if you want to. Thank you. Good morning, everybody. So कैसे हो आप लोग? How are you people? Fine? Yes, ma'am. Okay, I'm waiting for others to join. Meanwhile, if you have any doubt, किसी को कोई डाउट है बेटा, you can ask me. अगर किसी को कल के लेक्चर में कोई डाउट है या पुराने लेक्चर में डाउट है, आप पूछ सकते हैं. We will wait for 2 minutes. Let everybody join. Then we will start with our today's class. इसके अलावा, if you have any old doubts from the last 3 lectures, you can ask me बेटा. And if you have any other problem also, you can discuss with me if you like don't understand any topic or anything. So I have given you one problem, homework problem. Have you done that? किसने करी है बेटा homework problem? Yes, anybody? हर्ष आपने करी है? आंचल, कल मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी बेटा, करी है आपने? अखिल, करण, हरप्रीत, गगन, आशीष, एनीबडी? अतुल जोत, प्रेरणा? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही. Am I audible, Anchal? Yes, ma'am. Okay, beta. Chalo. Yes, ma'am. Okay. So we'll start. So screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. So we'll just start. See, हमने अभी तक what we have done, we have seen that if a polynomial px is given, okay, so this can be of any degree. What we have studied a polynomial of degree 1, a polynomial of degree 2, and a polynomial of degree 3. Beta, please mute yourself. Okay. Everybody, if you don't have any doubts, you mute. Okay, whose mic is on? Okay, fine. Now, what is this polynomial called? This is called a linear polynomial. This is a quadratic polynomial. And this is a cubic polynomial. Okay. And we have seen what is the relation between the coefficients and the zeros of these polynomials. So till now, we have seen the relation between zeros and coefficients of these polynomials. Okay, beta? ये हमने अभी तक किया है. Now the next question which we are going to answer is how to find out the zeros. How to find out the zeros. Okay, beta? So आज मैं आप लोगों से कुछ questions पूछूंगी. You have to tell me. Okay. सबसे पहले I'll ask Gagan Chaudhary. Can you unmute, beta? Gagan Chaudhary. Yes, Gagan Chaudhary. बेटा यस मैम. हाँ जी बेटा, बताइए जीरोस क्या होती हैं? पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होती है बेटा? व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? सपोज आई गिव यू अ पॉलिनोमियल px. व्हाट इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल? पता है आपको बेटा? मैम p. नहीं बेटा, वो वाली x की वैल्यू जो इसको जीरो बनाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पॉलिनोमियल है x - 2, दिस इज योर पॉलिनोमियल.
इसमें अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, Yes, मान ma'am. लो आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें देखो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो भी ये 0 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1 Yes, पुट ma'am. कर दोगे तो भी ये 0 बन जाएगा। तो दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके बेटा, सबको क्लियर है व्हाट इज Okay. द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? यस, यू कैन म्यूट बेटा नाउ। सो व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? If px is given, if x is equal to a is such that p of a is 0, then a is called a zero of the polynomial, is called zero of the polynomial. Clear beta? Yes? Yes बच्चों, ये चीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay, now tell me this one, 2x plus 5, इसकी जीरो क्या है? This is a polynomial. What is the zero of this polynomial? Anybody quickly? What is the Ma'am, zero? minus 5/2. Yes. So when x is equal to minus 5/2, when you put x is equal to minus 5/2 here, what you get? Minus 5/2 plus 5. This 2 and 2 will cancel. So you get minus 5 plus 5, which is 0. So this is the zero of the polynomial. This is the zero of the polynomial. Okay. So for a linear polynomial, finding the zero is very easy. So we say if ax plus b is a polynomial, is a linear polynomial. Linear polynomial मतलब उसकी डिग्री 1 है. Then zero will be, its zero will be क्या होगी बेटा, बताएगा कोई? x is equal to क्या होगी इसकी जीरो? What will be its zero बेटा? Minus b/a. यस, आप क्या करोगे? ax प्लस बी इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ से ax इज इक्वल टू माइनस बी, बी को मैं उस साइड ले गई, अब मैंने a से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो ये आपने याद रखना है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जीरो क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए, और एक ही जीरो होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा एक ही जीरो होती है। इज दैट ओके? So you have to remember this thing कि whenever you are given a linear polynomial, number of zeros will be 1, मतलब एक ही जीरो होगी, और वो जीरो कैसे निकालनी है? माइनस बी अपॉन ए। ओके बेटा, नाउ लेट अस गो टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो बेटा, इस केस में देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसकी जीरोस कैसे निकालोगे? अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो आप इसकी जीरोस कैसे निकालेंगे बेटा? कोई बता सकता है? एनीबडी? हाउ यू विल फाइंड आउट द जीरोस? कोई बता सकता है बेटा? फैक्टर बनाने आता है सबको? यस और नो? इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। Yes, ma'am. आप 5 को इस तरह से ब्रेक करोगे कि सम करके 5 आ जाए और प्रोडक्ट करके कितना आ जाए? 6 इंटू जो भी यहाँ पे 1 है। तो आपका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो यहाँ से आप x कॉमन, सो यू हैव x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन, सो यू हैव x प्लस 3, so you have x plus 3 into x plus 2. तो जब भी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो बनानी है तो आपको उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे जैसे ही आपने फैक्टर्स बनाए तो px इज इक्वल टू 0, हमें ये ढूंढना है ना कि x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 आएगा। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख दीजिए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? या तो ये 0 बने या फिर ये 0 बने।
ठीक है बेटा। सो ये दो जीरोस आ गई आपकी, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2। क्लियर है बेटा ये सबको? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो जीरोस आ सकती हैं, एक भी आ सकती है कई बार। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसकी जीरोस निकालिए बेटा, x² + 2x + 1। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल दे दिया, कोई मुझे बता सकता है इसकी जीरोस क्या है? जस्ट अ मिनट बेटा, देयर इज अ प्रॉब्लम इन स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन दिख रही है बेटा? No, ma'am. Yes, ma'am. दिख रही है? ओके चलो बेटा ये बताइए, अगर मैंने आपको ये समझ में आ गया ऊपर सबको कि ये वाले पॉलिनोमियल की, ये एक मैंने आपको पॉलिनोमियल दिया था ये वाला, इसकी जीरोस ये कैसे आई? इसमें किसी को डाउट? पूछ लीजिए अगर किसी को डाउट है। ओके नाउ ये आप मुझे बताओगे, ये वाला x² + 2x + 1 ये आपका पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस बताइए मुझे फटाफट। सब लोग अपनी कॉपी पे करेंगे और मुझे बताएंगे इसकी जीरोस क्या आएंगी। यस कोई बताएगा? अखिल आप बताओगे बेटा? प्रेरणा, संजना? मैम -1। यस इसके फैक्टर्स बनाओ पहले, सबसे बता, इससे पहले फैक्टर्स बनाइए। क्या बनेंगे बेटा? x + 1 का होल स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला आता है सबको, a² + b² + 2ab वाला। तो ये वो x + 1 का होल स्क्वायर है। इसमें किसी को डाउट कि ये x + 1 का होल स्क्वायर कैसे है? इक्वल टू 0, मतलब x + 1 = 0, मतलब x = -1। तो ये इसका 0 आ गया। ओके तो इसका मतलब जब भी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, पहले आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर हर फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देना है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की 0 आ जाएंगी। क्लियर बेटा? यस मैम। अब इसका बताइए बेटा, x² + x, इसकी जीरोस बनाइए फटाफट। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस बताइए बेटा। जब आप बोल नहीं रहे ना तब म्यूट कर लो बेटा प्लीज। हर्ष जब आप नहीं बोल रहे ना, जब आपने बोलना है बस तब आप अनम्यूट करना, ठीक है? अदरवाइज ओके इसकी जीरोस बताइए बेटा। क्या बनेंगी? करण शर्मा आप बताओगे बेटा? करण इज देयर? करण शर्मा यस। कैसे बनेंगे बेटा इसकी? फैक्टर्स बनाइए पहले, फैक्टर्स बताइए मुझे क्या बनेंगे। एनीबडी? x कॉमन ले लो बेटा, अंदर x² + x + 1 बच गया ना, इक्वल टू 0। इसका मतलब x 0 आ गया और x -1। सो दीज टू आर द जीरोस। क्लियर बेटा? क्वाड्रेटिक के कैसे जीरोस निकालने हैं सबको क्लियर है? आपको उसके फैक्टर्स बनाने हैं, उसके बाद आपको हर फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देना है, यू विल गेट योर जीरोस। किसी को डाउट इसमें? यस हरप्रीत आपको डाउट है बेटा कोई? हरप्रीत कौर? नो मैम। चलो अब द नेक्स्ट थिंग इज लीनियर और क्वाड्रेटिक, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट इज क्यूबिक। अगर आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी जीरोस कैसे निकलेंगी? कोई मुझे बता सकता है कैसे निकलेंगी? अगर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दूं मैं, उसकी जीरोस निकालनी है हमने, वो कैसे निकलेंगी? सपोज अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसकी हमने जीरोस निकालनी है बेटा, तो मैं एग्जांपल के साथ करा रही हूँ। सपोज यू हैव दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 3x² - x + 3।
आप क्या इसमें वैल्यूज पुट कर करके देख सकते हो? कोई ऐसी वैल्यू बता सकते हो जिसपे ये 0 बन रहा है? सिर्फ पुट करके देखना है आपने। x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 बन रहा है? बताइए। x इज इक्वल टू 0 पुट करो सब लोग। px की क्या वैल्यू आ रही है? x को 0 पुट कर दो बेटा, क्या आएगी वैल्यू? मैम 3. 3 आएगी ना। तो x इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करो सब लोग। पुट x इज इक्वल टू 1। क्या आएगा बेटा? 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर। 0. यस zero. यस बेटा 0 आएगा। तो ये आएगा आपका 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3। ओके, सो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ 0। अब क्यूबिक के केस में क्या होता है कि अगर आपको एक 0 पता चल जाए, यहाँ पे हमें एक 0 पता चली। कैसे पता चली? हमने पुट करके देखा। तो x इज इक्वल टू 1 इज अ 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। फैक्टर सबको पता है ना? इसका मतलब जब आप इसके फैक्टर बनाने जाओगे तो x माइनस 1 एक फैक्टर बनेगा, और भी बनेंगे, साथ में कुछ और बनेगा। ये लाइन सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अगर x Yes, इज ma'am. इक्वल टू 1 इज अ 0, इसका क्या मतलब है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। और इसका मतलब जब आप px के फैक्टर्स बनाने जाओगे, यू विल हैव दिस इक्वल टू x माइनस 1 इंटू समथिंग एल्स। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो समथिंग एल्स है ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? कोई बता सकता है मुझे? कैसे निकालेंगे ये? एनीबडी? आपने क्लास में काफी लोगों ने ये वाला चैप्टर कर लिया है बेटा। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो समथिंग एल्स है ये कैसे निकलेगा? Ma'am, divide this. हाँ जी, तो हम क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम सबको पता है बेटा। सो डिवाइड करना सबको आता है। सो लेट मी Yes, ma'am. डू दैट थिंग कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, this is equal to x minus 1 into something else. Let us call that as qx. To find this qx, divide x cube minus 3x square minus x plus 3 by x minus 1. आपने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। सो डिवाइड करें हम, तो यू विल डिवाइड इट x माइनस 1। डिवाइड करना सबको आता है बेटा। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। सबसे पहले किससे सबसे पहले यहाँ क्या फैक्टर आएगा? बताओ बेटा। आपने x को मल्टीप्लाई करना है सो दैट x क्यूब बन जाए। किससे मल्टीप्लाई करोगे? X squared. यस, x स्क्वायर से। तो ये क्या बन गया? x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब क्या करोगे? साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना बनेगा? माइनस 2x स्क्वायर। ये एज सच नीचे आएंगे, माइनस x प्लस 3। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? x को मल्टीप्लाई करना है ताकि माइनस 2x स्क्वायर बन जाए। किससे मल्टीप्लाई करोगे? x को मल्टीप्लाई करना है। यस, माइनस 2x। तो क्या बन जाएगा आपका? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है बेटा। अब आपने यहाँ पे ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गए, ये माइनस, तो कितना आ गया? माइनस 3x प्लस 3। अब आगे x को मल्टीप्लाई करना है कि माइनस 3x बन जाए। किससे करोगे? माइनस 3 से। यस, माइनस 3x प्लस 3। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कैंसिल कैंसिल 0। इसका मतलब यहां से आपके पास क्या आ गया कि दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल इनटू दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसमें किसी को डाउट बेटा? This algorithm is called division algorithm.
इसमें कई बार रिमाइंडर भी आता है। अब क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 वॉज अ फैक्टर, तो रिमाइंडर 0 है, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है बेटा, सो दिस हियर इज योर रिमाइंडर। क्लियर बेटा? इसको क्या बोलते हैं? जिसे डिवाइड करते हो इसको क्या बोलते हैं? बताओ, एनीबडी, व्हाट वी कॉल इट? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं जो आपका आंसर आता है? ये एनीबडी? Quotient. या दिस इज योर क्वोशिएंट। एंड जिसको डिवाइड करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके बेटा, सो दिस इज योर डिवीजन एल्गोरिथम। इसका मतलब अब हमने देखिए, हमारा एम क्या था? हमने इसके जीरोस निकालने थे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। हमारा क्वेश्चन था इसके जीरोस निकालना, टू फाइंड इट्स जीरोस। तो हमने क्या किया? स्टेप 1, हमने वैल्यूज पुट करके, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। वी फाइंड x is equal to 1 is a 0 by hit and trial। हिट एंड ट्रायल मतलब आपने बस पुट करके देखा, ठीक है। उसके बाद अगर x माइनस x is equal to 1 is a 0 मतलब x माइनस 1 is a फैक्टर। तो फिर हमने क्या किया? फिर हमने px को डिवाइड कर दिया x माइनस 1 से। डिवाइड px बाय x माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ गया कि ये जो पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू जो हमारा क्वेश्चन आया है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3। अब क्या करोगे बेटा? Yes. अब इसके फैक्टर्स बनाने आते हैं आपको? यस, इसके फैक्टर्स बनाने आते हैं ना सबको? अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाओगे? मेरी लग रही है उल्लती दी है। बेटा म्यूट कर लीजिए बेटा प्लीज। इसके फैक्टर्स बनाइए बेटा। कैसे बनेंगे? एनीबडी? एक्स स्क्वायर इसको तोड़ना है कि माइनस 2 सम आए माइनस 3 प्रोडक्ट आए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। देखो माइनस 3x प्लस एक्स क्या आएगा? माइनस 2x, और प्रोडक्ट करके क्या आएगा? माइनस 3x स्क्वायर। तो ये आपका बन गया x माइनस 1। यहां से x कॉमन ले लीजिए, अंदर x माइनस 3, यहां से 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर x माइनस 3। तो आपके पास क्या आ गया? x माइनस 1, अंदर क्या आएगा? x माइनस 3 x प्लस 1। तो आपके फैक्टर्स बन गए, मतलब जो आपको पॉलिनोमियल क्यूबिक दिया हुआ था उसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है बेटा, सो आपका px 0 मतलब x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 1 0। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू या 1 आएगी या 3 आएगी या माइनस 1। सो दीज आर द 3 zeros, these are the 3 zeros of the polynomial, these are the 3 zeros of the polynomial। क्लियर बेटा? किसी को डाउट इसमें? एनीबडी हैविंग डाउट हियर? No, ma'am. ओके, चलो बेटा अब आप इसको ये बताओ मुझे। क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सो आई एम टेलिंग यू कि इसका एक रूट ढूंढ सकता है कोई? यस, इसका एक रूट ढूंढ सकता है कोई? चलो उससे पहले मैं आपका डिवीजन एल्गोरिथम चेक कर रही हूँ। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फटाफट करके बताइए। आपने इसको डिवाइड करना है इससे। करो बेटा, डिवाइड कीजिए इसको, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करिए। डिवाइड दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल विद दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। करो बेटा सब लोग।
यस, आंसर बताइए फटाफट। कर रहे हो बेटा? जीरो, इसको डिवाइड कीजिए। किसी ने कर दिया तो आंसर बताइए, उसके बाद मैं कराऊंगी। बेटा मैथ्स की क्लास में 3x minus 5 क्या बोल रहे हो बेटा? 3x कौन बोल रहा है? संजना। 3x minus 5 यस संजना, गुड। 3x minus 5। अखिल आपने कर लिया बेटा? यस मैम। ओके, एवरीबडी गॉट इट। 3x minus 5। प्रेरणा, राजकुमारी, सबने कर लिया बेटा? 3x minus 5 सबका आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए। बताओ बेटा, एनीबडी जिसको नहीं ये 3x minus 5 मिल रहा है? वर्षा इज हियर, वर्षा राजपूत। कोई है बेटा? वर्षा। ओके, ठीक है। देखो बेटा कैसे करोगे, आपको x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 3x क्यूब बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 3x से ना। तो ये आ गया आपका 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या बन जाएंगे? -5x स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? -x प्लस 5। अब आपने x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कि -5x स्क्वायर बन जाए। -5 से तो -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके, सो ये प्लस हो जाएगा, कैंसल। ये प्लस हो जाएगा 9x, ये प्लस हो जाएगा +10। ओके, तो इसमें आपके पास क्वोशंट भी, रिमाइंडर भी आ रहा है। सो दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वोशंट। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग करेंगे। आपने मुझे इसके जीरोस निकाल के दिखानी है। ये पॉलिनोमियल दिया है मैंने आपको क्यूबिक। वैसे ही चलोगे, सबसे पहले एक हिट एंड ट्रायल से इसका रूट ढूंढो, इसका जीरो ढूंढो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? मैंने आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, आपने मुझे इसके रूट्स निकाल के बताने हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज हिट एंड ट्रायल से एक जीरो ढूंढो। ढूंढो सब लोग, हिट एंड ट्रायल से एक जीरो इसका फाइंड कीजिए बेटा। x इज इक्वल टू 0 है इसका जीरो? यस। मैम x इक्वल टू 2 हो गया। 2 आया है, ठीक है 2 आ रहा है। उससे पहले कुछ इजी भी आ रहा है। ये क्या हो गया? सॉरी। ओके, यस, x इज इक्वल टू 2। गुड बेटा, तो इसने ढूंढा है x इज इक्वल टू 2। कैसे आ रहा है ये? 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। ये 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6। ओके, सो ये जीरो आ रहा है क्योंकि ये 30 माइनस 30 बन रहा है। अब x इज इक्वल टू 2 अगर एक आपका रूट है, जीरो है, इसका मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ठीक है बच्चों, x माइनस 2 इज अ फैक्टर, इसका मतलब डिवाइड ये वाला जो है आपका x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बाय x माइनस 2। आप डिवाइड करोगे, सो डिवाइड कीजिए बेटा सब लोग। x माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6
तो आपको एक्स क्यूब बनाना है, एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए कि एक्स क्यूब बन जाए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब आपने इसको 4x स्क्वायर बनाना है, सो माइनस 4x, सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये प्लस का हो गया, ये माइनस हो गया, सो आपके पास 3x माइनस 6 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट इज 3x माइनस 6। तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा इस केस में, क्योंकि वो फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस 0। ओके बेटा, तो आपके पास क्या आ गया कि ये जो है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ठीक है बेटा, तो आपके पास आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसके फैक्टर्स बनाइए बेटा, इसके फैक्टर्स बता सकता है कोई? इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि सम करके माइनस 4 आए और प्रोडक्ट करके 3। So this is x square minus 3x minus x plus 3. So this is x common under x minus 3 minus 1 common under x minus 3 into x minus 2. So this is x minus 2, x minus 1, x minus 3. So आपके पास क्या आ गया? px जो है वो ये आ गया. So px is equal to 0 means x minus 2, x minus 1, x minus 3 equal to 0. इसका मतलब x की वैल्यू 1, 2 and 3. So this is your answer. This is the zeros of the polynomial. बेटा सबको समझ में आ गया कि zeros कैसे निकालनी है? Yes, everybody knows how to find out the zeros of the polynomial. किसी को डाउट है तो बताइए बेटा. Anybody having doubts, please let me know. चलो एक होमवर्क दे रही हूँ सबको. हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, लीनियर इक्वेशंस. ये वाला क्वेश्चन सब करोगे होमवर्क. कल वाला होमवर्क भी और आज वाला भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करूंगी. सो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ x की 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that 2 of its zeros are √2 and minus √2. ठीक है, आपके पास यहाँ 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है बेटा, 4th डिग्री का, और 2 रूट मैंने बता रखे हैं. तो आपने इसकी बाकी 2 रूट निकालने. जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने रूट्स होंगे, उतनी जीरोस होंगे. फाइन बेटा. सो ये आप लोग होमवर्क करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, लीनियर इक्वेशंस. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड आप लोग इसके डाउट्स भी पूछ सकते हो. Okay students, yes, now we still have 2-3 minutes before our meeting ends. आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा. Any doubt in anywhere in this chapter, please ask. नोट कर लिया ये क्वेश्चन सबने? नोट कर लिया बेटा ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'll stop sharing. Okay बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो. स्पीड या वैसे कोई दिक्कत है? लैंग्वेज समझ में आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, थैंक यू. ये कौन है? प्रेरणा. आप बात कीजिए बेटा. बाकी सब लोग कुछ लोग बस बात करते हैं, बाकी लोग बात नहीं करते हैं. प्रेरणा. Yes. यस. हाँ जी बेटा, कहाँ से हैं आप प्रेरणा? Ma'am,
चंडीगढ़ से, धनास से। ओके बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, ठीक है बेटा, फिर ये सब लोग पढ़ाई करेंगे। पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर मैंने खत्म करवा दिया है, तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देखना। किसी का कुछ मिस हो गया तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, वो शेयर कर रही हूँ मैं आपसे लिंक। और आपके डाउट्स हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय बेटा, Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय।